Hello students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with today's topic DNA fingerprinting. DNA fingerprinting and fingerprinting both are different. Okay. Generally, fingerprinting means marks present on finger, palm or sole. Okay, that is called fingerprinting, and the science related with fingerprinting is called dermatoglyphics. First of all, dermatoglyphics was started by Sir William Herschel in 1858. जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो फिंगर का कुछ मार्क्स ऑब्जेक्ट पर आता है. दिस मार्क इज कॉल्ड फिंगर प्रिंटिंग. दिस इज कॉल्ड फिंगर प्रिंटिंग एंड फिंगर प्रिंटिंग कैन बी अल्टर्ड बाय सर्जरी. सर्जरी के द्वारा इसको चेंज किया जा सकता है. यह है फिंगर प्रिंटिंग. ओके. डर्मेटोग्लाइफिक्स, the study of marks of finger, palm, sole is called dermatoglyphics, and science of fingerprinting or dermatoglyphics was first used by Sir William Herschel in 1858. But यहाँ हम लोग को जानना है DNA fingerprinting, and DNA fingerprinting is a technique to identify the person on the basis of DNA specificity. DNA में चेंजिंग के कारण पर्सन को पहचानना, अलग करना, that is called DNA fingerprinting. डिफिनेशन लिखा हुआ है, टेक्निक टू आइडेंटिफाई ए पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ DNA specificity is called DNA fingerprinting. Okay, or in other words we can say determining the nucleotide sequence of a certain areas of DNA which are unique to each individual. DNA का बेस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के आधार पर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना DNA फिंगरप्रिंटिंग कहलाएगा. एंड DNA fingerprinting was discovered by Alec Jeffreys. Invented by Alec Jeffrey in 1984 and also called father of DNA fingerprinting. In India, DNA fingerprinting was started by Dr. V.K. Kashyap and Dr. Lalji Singh. In India, DNA fingerprinting was started by Dr. V.K. Kashyap and Dr. Lalji Singh. So, Dr. Lalji Singh, also called father of DNA fingerprinting and India, and the research center for these scientists is or was CCMB, Center for Cell and Molecular Biology, situated in Hyderabad. ओके. तो ये तो हमने देखा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है. अब मैं बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ बेस सीक्वेंसेस प्रेजेंट इन डीएनए एट अ स्पेसिफिक एरिया. ओके. अब सभी पर्सन का कुछ न कुछ यूनिकनेस है, अलग है. 99.9% बेस सीक्वेंसेस are similar in all individual or in all human. 99.9%. तो डिफरेंस कितना? Only in 0.1%. जो पूरे बेस सीक्वेंस है, बेस है, उसका 0.1% में ही अलग अलग पर्सन में डिफरेंसेज है. एंड दैट डिफरेंशियल पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक डीएनए. जो भी 0.1% में डिफरेंस है उसका नाम देते हैं जंक डीएनए. जंक डीएनए का मतलब है कि उसका कोई एक्टिविटी नहीं है. लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसी जंक डीएनए का रोल है. ओके,
आगे देखते हैं, आगे देखें। 99.9% of nucleotide or base sequence are exactly similar in all humans. Okay, only difference in 0.1% of 3.3 into the power 10 to the power 9 base pairs provide individuality to each humans. यही डिफरेंस है। और अगर हम इस डिफरेंस की बात करेंगे तो इसका आएगा कितना, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 6। यह बेस सीक्वेंस में डिफरेंसेस होता है। एंड दीज एक्चुअली है क्या, देखिए, सपोज दैट दिस इज द डिफरेंट जीन्स। किसी भी इंडिविजुअल्स का एक्टिव जीन्स है और एक्टिव जीन्स के बीच का जो जीन का पार्ट है दैट इज कॉल्ड जंक डीएनए। जंक डीएनए and junk DNA shows variations, shows variability, so it is also called polymorphism. Differences are called polymorphism, and polymorphism is the key of DNA typing. polymorphism ही DNA टाइपिंग का की माना जाता है। इसी का यूज हम करते हैं। ऐसे नाम तो है जंक डीएनए, लेकिन बिल्कुल जंक नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसी जंक डीएनए का रोल है। अब देखिए, इन दिस रीजन, इट मींस इन दिस जंक रीजन bases are present in sequence. Suppose that these are the nitrogenous bases A C C G T A C C G T A C G C G T, इस तरह की। It means some definite bases are present in repeated form. Definite bases are present in repeated form. So this is also called restriction fragments. इसी का नाम क्या देते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। पूरे का नाम दिया हमने जंक डीएनए। जंक डीएनए का कुछ अलग अलग पार्ट है जिसमें कि रिपीट फॉर्म में है। पॉलीमॉर्फिज्म कंसिस्ट ऑफ वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकी। अलग अलग लोकी पर इसका लेंथ में वेरिएशन है, डिफरेंसेज है, ड्यू टू नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस, एंड दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। इसका नाम क्या देंगे, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। एंड इन रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स some definite nitrogenous bases are present in repeated form. Okay, in restriction fragments some definite nitrogenous bases are present in repeated form. अब देखिए यहाँ रिपीटेशन का नंबर भी वैरी कर सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार। यहाँ हमने दिखाया है A C C G T A C C G T, यहाँ 3 टाइम्स है। 3 रिपीट का मैंने शो किया हूं मैं। किसी किसी कंडीशन में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है जो बेस का नंबर है यह भी वैरी करेगा। मैं लिखा हूं A C C G T, इट मीन 6 बेसिस इन सम अदर पोजिशन, अदर प्लेस मे बी 5, 4, ओके, एंड मोर देन 5। ये दोनों में वेरिएशन हो सकता है। देखिए, तो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स कंसिस्ट ऑफ हाइपर वेरिएबिलिटी रिपीट रीजन ऑफ डीएनए having repeat sequence. DNA having repeat sequence of 11 to 60 base pairs, and that is called VNTR. That is called VNTR, means variable number of tandem repeat. And this VNTR is used in fingerprinting. एक्चुअली है क्या कि जब किसी भी पर्सन के जीन का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, तो 2 तरह के पिक का फॉर्मेशन होता है। जब किसी भी लिविंग्स के जीन को, ह्यूमन के जीन का डेंसिटी
ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, उसको रख करके स्पिन कराया जाता है, तो दो तरह का पिक मिलता है। वन इज मेजर पिक एंड अदर इज माइनर पिक। मेजर पिक एंड माइनर पिक, ओके। एंड मेजर पिक इज बल्क डीएनए। बल्क डीएनए इट मीन्स किसी भी लिविंग्स का जो भी जीन एक्टिव जीन्स है वह शो करता है बल्क डीएनए, और जो जंक डीएनए है मीन्स पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में है दैट इज माइनर डीएनए एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। It is also called satellite DNA. Okay, and satellite DNA is of two types. Satellite is of two types: microsatellite and mini satellite. Microsatellite and mini satellite. Mini satellite is also called VNTR. Mini satellite is also called VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। और इसी VNTR के बेस सीक्वेंस का यूज करते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ओके, अब तो ये हमने देख लिया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करना है। तो किसी डीएनए सीक्वेंस का, सॉरी डीएनए पार्ट का बेस सीक्वेंस का पता लगाना। अब यह काम इतना आसान तो है नहीं। डीएनए को हम सिंपली देख भी नहीं सकते। डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस in case of eukaryotes with histone protein in form of chromosomes। अब उस सेल के अंदर से न्यूक्लियस को निकालना है, न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम को निकाल करके डीएनए को अलग करना है, और उस डीएनए से हमको निकालना है VNTR को, और उसके आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ओके, तो ये था प्रिंसिपल कि कैसे हम यूज करते हैं। अब उसका मैकेनिज्म देखें, कैसे हम उसका प्रोसेस करते हैं, क्या मैकेनिज्म है फिंगरप्रिंटिंग का। ओके, Now see, generally variation in length of restriction fragments। अभी जो हमने बात किया कि ये जीन है, जीएनए का बीच का पार्ट जंक डीएनए, सैटेलाइट डीएनए की बात किया, और इसी सैटेलाइट डीएनए में कुछ जो रिपीटेड फॉर्म में बेस सीक्वेंस है, तो वह बेस सीक्वेंस में वेरिएशंस के कारण, ड्यू टू नंबर ऑफ बेस, ड्यू टू रिपीटेशन, रिपीटेशन में वेरिएशन के कारण, बेस नंबर में वेरिएशन के कारण इसका लेंथ क्या होगा, सबका वैरी करेगा। सबका लेंथ क्या करेगा, वैरी करेगा। एंड दिस वेरिएशन इन लेंथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इज कॉल्ड RFLP। कॉल्ड RFLP मीन्स रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में वेरिएशन, लेंथ में वेरिएशन हो रहा है, तो इसका नाम हमने दे दिया RFLP। और जो भी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स है RFLP वेरिएशन शो कर रहा है, किसके कारण, तो ड्यू टू नंबर ऑफ बेस और ड्यू टू रिपीटेशन। इट मीन्स लेंथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स डिपेंड्स अपॉन VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ओके, नाउ सी मैकेनिज्म के पहले जान ले। जैसे अगर कोई मदर्स है, सपोज दैट दिस इज क्रोमोसोम्स ऑफ मदर, ये मदर का क्रोमोसोम है, इधर फादर का क्रोमोसोम है, ओके, एक तरफ मदर का क्रोमोसोम, एक तरफ फादर का क्रोमोसोम। अब यहां भी कुछ न कुछ पॉलीमॉर्फिज्म होगा, सैटेलाइट डीएनए होगा। जनरली सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट नियर द टीलोमियर और नियर द सेंट्रोमियर। ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है टीलोमियर के पास होने का और सेंट्रोमियर के पास होने का। ओके, अब देखिए यहां कुछ सैटेलाइट डीएनए है, VNTR है, फादर्स में भी कुछ VNTR है। अब दोनों क्रोमैटिड की बात करें हम, इसका सेपरेशन होगा और इसका एक पार्ट जाएगा चाइल्ड में। एक मदर से आया, एक फादर से आया, ठीक है ना, एक मदर से आया, एक फादर से आया। अब देखिए यह जो दोनों होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम है, दोनों में VNTR है, दोनों में VNTR है, बट VNTR ऑफ
VNTR of both homologous pair of chromosome are not similar. एक ही पेयर के दोनों क्रोमोसोम का VNTR सिमिलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि एक मदर से आया है, एक फादर से आया है, तो यहाँ कुछ न कुछ डिफरेंसेस होगा। मान लिया एक में रिपीटेशन 3 है तो एक में 4 हो सकता है, एक में 10 बेस है तो एक में 9 बेस हो सकता है। मीन्स नंबर ऑफ बेस एंड नंबर ऑफ रिपीटेशन बोथ आर डिफरेंसेस इन both chromosomes of homologous pair because one comes from mother part, one comes from father parts. Okay? अब हम देखते हैं mechanism of DNA fingerprinting. Okay, now see the mechanism of DNA fingerprinting. क्या प्रोसेस है, कैसे हम DNA fingerprinting करते हैं? Okay, सबसे पहले extraction of first stage is extraction of DNA from cell. Extraction of DNA from cell by using enzymes. Okay? जैसे अगर सेल से डीएनए को निकालना है तो उसका सबसे बाहर का कवर जो सेल का है लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज एंड प्रोटीएज एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिसॉल्व. ओके, आफ्टर दैट in chromosome protein is also present. That protein is removed also with the help of protease enzyme. तो सबसे पहला काम है कि डीएनए को निकालना है. ओके, एंड डीएनए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेल्स. अगर हम किसी फोरेंसिक साइट की बात करें जहां की किसी क्रिमिनल्स को सर्च करना है तो उस साइट से जो भी प्रूफ मिलता है, जो भी सेल मिलता है, उसी सेल से डीएनए को निकाला जाता है. ओके, सेकेंड स्टेज डीएनए इज कट into a small pieces with the help of molecular scissor. Also restriction endonuclease enzyme. Restriction endonuclease enzyme acts as molecular scissor. Scissor means कैंची, molecular means molecules. डीएनए फ्रैगमेंट्स को या अलग अलग पीस में काट देता है, इस चीज का नाम देते हैं मोलिकुलर सीजर. ओके, ऐसे इसका डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे जाकर के बायोटेक्नोलॉजी में. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय हिंड. सेकंड, ओके, सबसे पहला निकला था हिंड. ओके, सो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड, सेकंड एंड थर्ड हिंड थर्ड. आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर प्रेजेंट that cuts the DNA at a specific site. सबका अलग अलग काटने का साइट होता है. नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड. सेपरेटेड बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड. ओके, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड्स क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जनरली इट इज ए प्लेट फिल्ड विथ जेल. ये प्लेट है, जेल, मेनली एगारोज जेल इज यूज्ड, obtained from Giladium and Gracilaria algae. Filled with gel. At one end, some Bell's cavities are present. This is filled with DNA.
जो भी कट पार्ट हमने किया, फ्रेगमेंट्स किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के हेल्प से, उसको इस साइड पर डाल दिया गया और यह जो एंड होता है कैथोड होता है, नेगेटिवली चार्ज, अदर एंड एनोड। यू नो DNA is negatively charged molecule that moves towards the anode, positively charged। अब यहां से ये मूव करेगा, इसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, अलग अलग साइज का फ्रेगमेंट्स है। अब ध्यान दीजिए कि जेल से होकर के DNA मूव कर रहा है, पास कर रहा है, तो जिस फ्रेगमेंट्स का साइज छोटा होगा वो आगे तक जाएगा, जिस फ्रेगमेंट का साइज बड़ा होगा वह पीछे रह जाएगा, दिस लाइन। Okay, it means these are the RFLP, RFLP restriction fragments length polymorphism, जिसका जैसा लेंथ होगा उसके आधार पर जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में मूव करेगा। सो थर्ड स्टेज, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। ओके, नेक्स्ट स्टेज, इट इज treated with alkaline chemical to split them into single stranded। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहां अलग अलग सेपरेट हुआ डीएनए का मूवमेंट हुआ, लेकिन वह डीएनए विजिबल नहीं है, हम इसको देख नहीं सकते हैं। अब इस जेल पर हमने डाल दिया क्या, अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम दैट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कन्वर्ट्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, नेक्स्ट स्टेज इज ब्लॉटिंग। नेक्स्ट स्टेज इज ब्लॉटिंग और सॉदर्न ब्लॉटिंग। अगला टेक्निक जो है, मेथड है, वह सॉदर्न ब्लॉटिंग है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेज, ब्लॉटिंग द सेपरेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स, जो कि जेल पर हमने एल्कलाइन केमिकल से ट्रीट किया, रिजल्ट किया और डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो गया। अब उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ट्रांसफर करना है नायलॉन मेम्ब्रेन पर। कहां ट्रांसफर करना है? नायलॉन मेम्ब्रेन पर। द सेपरेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन ए नायलॉन मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। नायलॉन मेम्ब्रेन एक्ट्स एज इंक ब्लॉटर। इंक ब्लॉटर, मान लिया अगर कहीं इंक गिर गया तो पेपर एक रखते हैं, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक उसी तरह का काम करता है नायलॉन मेम्ब्रेन। इट मीन्स अगर ये जेल है तो जेल के ऊपर नायलॉन मेम्ब्रेन को रख करके थोड़ा सा प्रेस किया जाता है, रिजल्ट क्या होता है, सारा डीएनए फ्रेगमेंट्स नायलॉन मेम्ब्रेन से चिपक जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। अब ब्लॉटिंग जो टर्म है दिया गया है यहाँ कहते हैं सॉदर्न ब्लॉटिंग। सॉदर्न ब्लॉटिंग सॉदर्न साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड सॉदर्न। चारों दिशा के नाम पर साइंटिस्ट का नाम है और चारों से रिलेटेड ब्लॉटिंग भी है। सॉदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ओके, तो यहां हमने यूज किया सॉदर्न ब्लॉटिंग। क्वेश्चन आता है कि इन डीएनए विच टाइप ऑफ ब्लॉटिंग इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड सॉदर्न ब्लॉटिंग। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, नायलॉन मेम्ब्रेन पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चला गया ना। अब देखिए क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब। रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब हैविंग रेडियो एक्टिव, सॉरी यहां लिख दिए, हैविंग रेडियो एक्टिव रिपीटेड बेस सीक्वेंस complementary to VNTR are poured on nylon membrane। नायलॉन मेम्ब्रेन पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आ गया। अब ऊपर से हम प्रोब को डालेंगे। प्रोब मीन्स आर्टिफिशियल डीएनए सीक्वेंस हैविंग न्यूक्लियोटाइड कंप्लीमेंट्री टू VNTR।
कंप्लीमेंट्री टू, अलग अलग प्रोब डाल देंगे, जिसके जैसा जो VNTR का कंप्लीमेंट्री प्रोब होगा वह उससे अटैच होगा, सो poured over the nylon membrane and this process is called hybridization. Suppose that जैसे कि अगर यह नायलॉन मेम्ब्रेन है, नायलॉन मेम्ब्रेन पर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का अलग अलग पोजीशन है अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, छोटा और बड़ा। अब इस पर इसके साथ आकर के जुड़ गया हमारा कौन, आकर के जुड़ गया प्रोब्स, प्रोब का अटैचमेंट हो गया, अब डबल स्टैंडर्ड हो गया। यह जो प्रोसेस कहलाता है नाम है हाइब्रिडाइजेशन। जनरली VNTR को देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब उस VNTR का कॉम्प्लीमेंट्री DNA हमने जोड़ा प्रोब्स को, इसी प्रोब्स को देख करके हम पता लगाते हैं मार्क और चिन्ह उसका, दैट इज फिंगर प्रिंटिंग। तो अभी तक हमने ये बना तो दिया लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जो लास्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी। लास्ट स्टेज ऑफ DNA fingerprinting is auto radiography, means nylon membrane is exposed to एक्सरे फिल्म। अब फिल्म से जब एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी कराया गया तब क्या होता है कि एक्सरे फिल्म पर बैंड्स मिलता है, जो भी RNA का बैंड्स था हमको वह एक्सरे फिल्म पर दिखाई देगा, और यही प्रोसेस है ऑटो रेडियोग्राफी। जब तक ऑटो रेडियोग्राफी नहीं करेंगे, प्रोब का यूज नहीं करेंगे, हम सारा प्रोसेस कर लेंगे, लेकिन हमको DNA का जो भी फ्रेगमेंट्स है, सीक्वेंस है, वह दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसका यह जरूरी है ऑटो रेडियोग्राफी, और उसको कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी इज डन फॉर अपीयरेंस ऑफ बैंड ऑन एक्सरे फिल्म। ठीक है ना। चलिए, एक्सपोज टू एक्सरे फिल्म तब क्या होगा, बैंड्स ऑफ DNA appears on एक्सरे फिल्म। अब देखिए आप लोग NCERT बुक में फिगर दिया हुआ है, NCERT बुक खोल कर देख सकते हैं कि NCERT बुक में फिगर दिखाया है, अलग अलग दो, एक मदर का और एक फादर का होमोलोगस पेयर लिया है किसी पर्सन का, अलग अलग क्रोमोजोम का, अलग अलग क्रोमोजोम का VNTR अलग अलग होगा। ठीक है ना। मान लिया जाए हमने एक का बैंड निकाल लिया गया, एक पर्सन ए है ये, दूसरा पर्सन का हमने बैंड एक्सरे फिल्म पर निकाला तो हमको ये मिला, सपोज दैट ऐसा स्ट्रक्चर मिला बी का। अब किसी साइट पर अगर क्राइम हुआ है, क्राइम साइट से कुछ सेल्स मिला, उस सेल्स का भी हमने प्रिंट निकालेंगे। अब उसका ये प्रिंट निकाल लिया, ठीक है, और उसका प्रिंट निकाल करके फिर इन दोनों से मैच किया जाएगा, देखा जाएगा कि किसका प्रिंटिंग सेम है। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर दिस इज सिमिलर टू बी, इट मीन्स बी इज क्रिमिनल। ओके, सो DNA टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द पैटर्निटी। एक ही चाइल्ड के अगर दो पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे हैं, तो वैसे केस में उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग किया जाएगा, उससे पता चलेगा। और दूसरा इसका रोल है, यूज है इन डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स। ओके।